بی جے پی مہیلا مورچہ کی رہنما طاہر اختر نے شوپیان کے کلر علاقے میں عوامی رابطہ مہم کے دوران مقامی افراد سے ملاقات کی۔ سومو ڈرائیوروں نے سرکاری بسوں کی آمد سے روزی متاثر ہونے کی شکایت کی۔ طاہر اختر نے مسائل متعلقہ حکام تک پہنچانے اور جلد حل کی یقین دہانی کرائی۔ اچھا یہ حکومت آئے کہ عمر عبداللہ تھک 3 بس اچھا اخ بسا گیو ٹھیک ہے آڑس تھون کیا سوچن یہ غریب آز برو 20 ورین ڈیور حضرات ہند مطلب سوچن یہد عیال تہ گژھِ بچن اگر ٹھیک بس اخ تھو اڑس ٹھیک چلو ون کم موج بین رۄپیہِ نا اخ بس گو ٹھیک مگر وۄنۍ تھایکھ 3 بس 3 بس چھنہٕ شُپین مین اڑس چھنہٕ 3 بس کہیٖنۍ ژٕ ون تہٕ یتھ کیلر اڑس چھُ نہٕ 3 بس کہیٖنۍ۔ تو انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، یہ بولتا ہے کہ ہم آپ کو ادھر مدد کریں گے، ہم بہت ہی غریب ہے تو ہم نے لون نکالا ہے تو اس لیے یہاں بہت ظلم ہے۔ مطالبہ یہی ہے کہ یہاں گاڑی ایک کم ہونا چاہیے اور ہم نے لون نکالا ہے، زمین بھی بیچے ہے، ہم کیا کریں، ہم تو ایک گاڑی ہم نے رکھے ہیں اپنے روزی روٹی کے لیے، تو اب کام بھی نہیں ہے اتنا، ہم سوچتے ہیں اگر ایک بس کام ہو جائے گا تو ٹھیک ہے۔ اننت ناگ کے وزیر باغ میں آنگن واڑی ورکرز اور ہیلپرز نے پوشن ابھیان میں دی گئی خدمات کے اعتراف اور سینٹرز کی ممکنہ بندش کے خلاف خاموش احتجاج کیا۔ صدر فہمید اختر نے کہا کہ ہم نے اضافی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی ہیں مگر حکام کی طرف سے کوئی سراہنا نہیں ملی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت سینٹرز کو بند کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے تاکہ روزگار اور عوامی سہولیات محفوظ رہیں۔ اس کا مدعا مقصد یہ ہے کہ جو ستمبر کا مہینہ اور اکتوبر کا مہینہ تھا تو وہ ہمارا پوشن ابھیان ماہ تھا، تو وہ ہم نے بڑی خوشنودی سے ہم نے وہ انجام دیا ہے۔ جو لاسٹ میں وہ اس کی سیلیبریشن ہوئی ہے، آنگن واڑی ورکر اور ہیلپر کا نام ہی نہیں کہی تھا، کیونکہ جو کام ہم نے کیا ہے وہ تو آنگن واڑی ورکر اور ہیلپر نے کیا ہے مل جل کے، لیکن ہمارا نام ہی کسی بہی میں نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے افسروں سے موتبانہ گزارش کر رہے ہیں، کام ہم کر رہے ہیں، نام کسی کا آ رہا ہے آگے، چلو ہمیں بھی شاباشی ملنے چاہیے، کیونکہ جو کام گھر میں بچہ کام کرتا ہے تو اس کو بھی شاباشی ملتی ہے نا ماں باپ سے، لیکن ہمیں کوئی نہیں شاباشی، ہم نے کسی آنگن واڑی ورکر کو نہیں ملا ہے۔ لیکن جو یہ حکومت چاہتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ جو چاہتی ہے کہ ہماری جو سینٹرز ہے JNK میں تو وہ منسلک ہو جائیں گے سکول۔ جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں سیکیورٹی فورسز نے ایک IED کو ناکارہ بنا دیا۔ ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد کی جانب سے شوپیاں ضلع کے حیف شرمال علاقے میں سڑک پر ایک IED نصب کی گئی تھی، جس کی اطلاع فورسز کو ملی، جس کے بعد فوج کی 44 راشٹر رائفلز، پولیس اور CRPF نے بم اسکواڈ کی مدد سے IED کو ناکارہ بنا دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مزید جانچ شروع کر دی ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ سری نگر کے بازاروں میں دیوالی کی تیاریاں زوروں پر جاری ہیں، جہاں خریدار مٹھائیاں، پٹاخے اور آرائشی سامان خرید کر تہوار کو خوشگوار بنا رہے ہیں۔ لال چوک اور ریزیڈنسی روڈ پر دکانیں رنگ برنگی روشنیوں اور دیوں سے سجی ہیں، جبکہ سٹالز پر دیے اور موم بتیاں رکھی گئی ہیں۔ دکانداروں نے فروخت میں اضافہ اور خوشگوار ماحول کی اطلاع دی۔ سری نگر اس تہوار پر محبت، امن اور خوشیوں کی روشنی سے جگمگا اٹھا ہے۔ پردیپ ہے، میں یہاں اسکاسٹ ویٹینری کی اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پہ یہ میری فرسٹ دیوالی ہے اور یہاں پہ میں شاپنگ کرنے آئی ہوں اور بہت اچھے سے دھوم دھام سے یہاں پہ اتنے سارے پٹاخے ہیں، اتنے ساری مٹھائی ہیں اور کچھ ایسے الگ نہیں لگ رہا ہے، مجھے یہاں پہ بہت اپنا اپنا فیل ہو رہا ہے اور مجھے بہت ایکسائٹیڈ ہوں یہاں پہ فرسٹ دیوالی سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ ہم سب، میرا نام وکاس موریہ ہے اور میں ابھی سری نگر میں رہ رہا ہوں، UP سے ہوں، اور یہاں پہ کافی اچھا ہے دیوالی دیکھ کے، لوگوں کے دل میں کافی بڑھیا ماحول ہے۔ ہم نے دیکھا لال چوک میں بھی کافی سارے دیے کا ویوستھا کیا گیا ہے اور کافی لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، شام کو کافی اچھا ماحول رہے گا اور ڈھیر سارے دیے بھی لگائے ہوئے ہیں، مٹھائیاں لوگ لے جا رہے ہیں، تو کافی اچھا ماحول ہے۔ My name is Dr. Parul Singh Parihar. I'm a lecturer here in Government Degree College, Eidgah. And this is for the first time I'm able to enjoy this festival mode of Diwali. As you all know, this is the festival.
मीरवाइज उमर फारूक ने दिवाली की मुबारकबाद पेश की है। मीरवाइज ने ट्वीट किया कि रोशनी का त्यौहार मनाने वाले हिंदू भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद। इन सब को मेरी तरफ से और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की तरफ से नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ। मुल्क भर में दिवाली त्यौहार मनाया जा रहा है, इस मौके पर बाज़ारों में काफ़ी चहल पहल देखी जा रही है। जहां आवाम को अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ देखा गया, उस दौरान आवाम ने इस बात पर भी इत्मीनान का इजहार किया कि पुंछ की पुरानी रस्म रही है कि यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होकर त्यौहार मनाते हैं। पहले तो मैं पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पूरे हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठे होकर सभी जो भी त्योहार हैं उनको मनाया जाता है। गुरपुरब हो, बैसाखी हो, दिवाली हो, ईद हो, सभी धर्मों के लोग पूरे मिलजुल कर इस त्योहार को मनाया जाता है और पूरे देशवासियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बाजारों में तो 2 दिन पहले ही खरीदारी शुरू हो गई थी। हिंदू मुस्लिम सिख ये पता नहीं चलता ईद है कि दिवाली है। दिवाली का त्योहार है, हिंदू भी सामान ले रहे हैं, मुस्लिम भी ले रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी आइटम है दिवाली की जो सभी लोगों को पता होता है कि इसमें आज कुछ डिस्काउंट मिलेगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। कुपवाड़ा के टेटवाल सेक्टर में भारतीय फौज ने मकामी अवाम के साथ मिलकर दिवाली का जश्न मनाया, जिसमें बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। दिए रोशन किए गए, तराने गाए गए, सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद हुए। फौज ने इसे अवाम से रिश्ता मजबूत करने का कदम करार दिया, जबकि मकामी लोगों ने इसे अमन व भाईचारे की अलामत कहा। सज्जाद अहमद भट्ट साकिन दोदीपुरा हंदवाड़ा ने प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे के लिए कामयाबी हासिल की है। ये कामयाबी उनकी मेहनत, लगन और साबित कदमी का नतीजा है, जो न सिर्फ ज़ाती एजाज़ है बल्कि कुपवाड़ा और पूरी वादी के नौजवानों के लिए एक बड़ी तहरीक भी है। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के रोहमो इलाके में दीनी मदरसा में पीर को अलग सुबह ज़बरदस्त आग लग गई, जबकि मकामी लोगों के साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। ताहम इमारत को नुकसान पहुंचा, जबकि ज़ेर तालीम बच्चों को बहिफाजत निकाल लिया गया। जम्मू के मंडार रोड पर एक मुसाफिर मेटाडोर ब्रेक फेल होने के बाद गहरी खाई में जा गिरी, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जख्मियों को निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। हुकाम के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत अब मुस्तहकम है। डिजिटल दौर में भी कश्मीर के ज़िला पुलवामा का संगरवनी इलाका मोबाइल नेटवर्क से महरूम है। तालीमी सरगर्मियाँ, रोज़गार के मौक़े और समाजी रवाबित सब मुतासर हो रहे हैं। मकामी अफराद सिग्नल की तलाश में रोज़ पहाड़ों का रुख करते हैं। आवाम ने इंतज़ामिया और मोबाइल कंपनियों से फौरी इक़दामात की अपील की है। चलो इस दौर में अभी जो है अभी मौसम ठीक है, तो अभी अगर वो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएंगे तो वो कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे विंटर सीज़न आने वाला है, जिसमें तकरीबन 4 से 5 फुट बर्फ़ होती है। तो यहाँ से जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? 2 या 3 किलोमीटर पैदल चल के, फिर वहाँ वीडियो डाउनलोड करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो हम हर बार इस पे बात करते रहते हैं जहाँ हमें मौका मिले, तो बार बार गुजारिश करते आए हैं। इस बार भी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो ये एरिया है इंद्रवाली कंडे पथरी का एरिया, इस पर नेटवर्क टोटली नहीं है। तो इसमें मैं बार बार यही अपील करता हूँ कि हमारे इस मसले की तरफ ध्यान दे के इसका इजाला किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को ये। शोपियान बिजबाड़ा की अहम सड़क पर तवील इंतज़ार के बाद मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू हो गया है, जिससे मकामी लोगों और मुसाफिरों को बड़ी राहत मिली है। लोगों का कहना है कि सड़क पर बड़े गड्ढे होने की वजह से सफ़र निहायत मुश्किल और ख़तरनाक था। ख़ासतौर पर रात के वक्त उन्होंने महकमे R&B ज़ैनबपुरा का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि काम जल्द मुकम्मल होगा, ताकि सफ़र आसान और राब्ता बेहतर हो सके। ये हमारे धीरे मांग थी कि इन गाड़ों को थोड़ा ठीक किया जाए। आज R&B डिपार्टमेंट ज़ैनबपुरा ने इस पे काम किया है। ये जो ज़ैनबपुरा बिजबाड़ा रोड है, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। खासकर आरिफ साहब JE और सुपरवाइज़र महान यासीन साहब के भी शुक्रगुजार हैं, और इन R&B डिपार्टमेंट ज़ैनबपुर के जितने मुलाजिम हैं उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने आज इस पे मैगडम डाला और ये गड्ढे
भर गए हैं। ये हमारी बहुत सी देराना मांग थी, लेकिन आज ये पूरा हो गया। तकरीबन चित्रागाम से लेकर बिजबारा तक ये रोड बिल्कुल ख़राब हो गया था, बड़े बड़े खड्डे हुए थे इसमें, लेकिन शुक्रगुजार है आरएनबी की कि इसमें। जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक दक्षिण की पंचायत जनकपुर में मनरेगा के तहत ताहाल कोई काम शुरू नहीं हो सका। सबक सरपंच आसिफ हुसैन ने हुकाम से बर्फबारी से कबल काम शुरू करने की अपील की। आवाम का कहना है कि जॉब कार्ड होल्डर्स की डिमांड भी ताहाल मंजूर नहीं हुई। के इलाका दक्षिण में जो प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पर 2018 से अभी तक कुछ लोगों ने मुआवजा लिया है। जो एडिशनल लैंड बकाया थी, फ्रूट बेयरिंग नॉन फ्रूट बेयरिंग का पैसा लोगों का गवर्नमेंट के पास था, तो वहाँ से इनवॉइस पहुँची है ट्रेजरी में, मगर 6-7 महीने गुजर गए कि लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। क्योंकि गरीब आवाम हर वक्त इधर किश्तवाड़ में आते हैं तो यहाँ पे ट्रेजरी में कहा जाता है कि पैसा ही अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी लोग सफ़र कर रहे हैं। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि एमजी नरेगा स्कीम के तहत हर एक पंचायत में डिमांड लगी है, मगर जनकपुर पंचायत को इग्नोर क्यों किया गया है। और IHHL बाथरूम जो है वो उनके पैसे भी बकाया है। सेंट्री कम्प्लेक्स जो 2019 में हर एक पंचायत में बने हुए। अनंतनाग के अछबल से छतरगल जाने वाली सड़क कनघाल के मकाम पर हालिया सैलाब के बाद शदीद मुतासर हुई। नाला आरिपत ने सड़क का बड़ा हिस्सा बहा लिया, जिससे हादसात का खतरा बढ़ गया है। मकामी लोगों ने महकमे तामीरात आम्मा से फौरी मरम्मत की अपील की है। देखा कि वादी कश्मीर में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी, कई रिहायशी मकानात, कई सड़कें, खेत खलियान तबाह हो गए उस पानी के बहाव में। और वही हमने कई इलाके ऐसे भी देखे जिनका राबिता जो है मुनक़ता हो गया। इस वक्त हम मौजूद है अनंतनाग के एक मज़ाफ़ाती इलाके में जिसका नाम कंगनहाल है। बिल्कुल आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा फ्रेम में कि ये राबिता सड़क जो है ये अछबल से चित्रगुल की तरफ जाती है, और यहाँ कंगनहाल के मकाम पर ये सड़क जो है बिल्कुल ढह गई है। और आप जो विजुअल्स में ये नाला देख रहे हैं, इसको नाला आरपत कहा जाता है। और गुज़िश्ता दिनों की जो सैलाबी सूरत हाल यहाँ इलाके में पैदा हो गई थी, उसने इस इलाके में जो है काफ़ी कोहराम मचा के रखा था। हालांकि पानी की सतह अगरचे अब नॉर्मल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अब ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। बिल्कुल हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो राबिता सड़क है आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन ज़रूर दबाइए।